اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر جب بھی کوئی عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو ایک دم سے ان پر عذاب نازل نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت پہلے اپنی کچھ نشانیوں کے ذریعے سے انہیں تنبیہ فرماتا ہے۔ یہی حال اس نافرمان قوم کا ہوا کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی گھٹائیں برسائیں، ان پر کرم کیا، انہیں مشکلات سے نکالا، امتحان میں کامیاب کیا، سرخرو کیا، کامیابی دی، اور فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو ان کے لیے باعث رحمت بنتی اور انہیں راہ راست پہ لاتی، لیکن فرعونی بجائے اس کے کہ راہ راست پہ آتے وہ اور بھی تکبر و غرور کا شکار ہوئے، اور یوں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں پہ در پہ کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر جو عذاب نازل فرمائے، پہلے تو تنبیہ کے طور پہ ان کے پھلوں کو، یعنی کہ پھلوں کی مقدار کم ہوئی، ان کی کھیتیاں خشک سالی کا شکار ہوئیں، اناج، گندم اور دیگر چیزیں جو تھیں وہ ان کے لیے وافر مقدار سے کم مقدار میں نکلنے لگی۔ تو یہ وہ تنبیہ تھی کہ جس پر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرخروئی اور اجابت چاہتے، لیکن برادران ملت اسلامیہ انہوں نے اپنے رب سے منہ موڑ کے رکھا، تو اللہ رب العزت نے ان پر کئی عذاب جو ہے وہ نازل فرمائے۔ ان پر 8 دن شدید قسم کی بارش برستی رہی، یا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں تفسیر روح المعانی کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ رب العزت نے چاہا فرمایا کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، بارش بھیجی، گپ اندھیرا، 8 دن مسلسل بارش برستی رہی، یہاں تک روایتوں میں ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ پانی ان کی ہنسلیوں تک پہنچا۔ یہ جو گلے میں یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ اس کو ہنسلی بولتے ہیں، یہاں تک پانی آیا، اور 8 دن پانی ان کے کھیتوں میں رہا، ان کے گھروں میں رہا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، ان کی گلی میں، ان کے محلے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا، اور جبکہ اس ظالم قوم پر اتنا جو پانی آیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد، اور ان پر ٹڈیاں بھیجی، وہ جو کھیتیوں کو کھا جاتی ہیں ٹڈیاں۔ اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں، پہلے تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ان پر جوئیں، یہ جو جوئیں پڑ جاتے ہیں نا سروں میں، جوؤں کا عذاب نازل کیا، پھر ان پر مینڈک بھیجے، اور پھر جو ہے وہ پانی خون بن جاتا تھا، مدمہ، پانی جو ہے وہ خون بن جاتا تھا۔ فرمایا کہ یہ سب بڑی واضح نشانیاں تھیں، بڑے واضح پیغام تھے، اور انہیں چاہیے تھا کہ ان پیغامات پر جو ہے وہ اپنے لیے بجائے اس کے غفلت میں اترنے کے، وہ اپنے لیے راہ ہدایت تلاش کرتے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے وہ حاضر ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ تو ان پر اللہ رب العزت نے جب وہ طوفان بھیجا، یعنی کہ بارش بھیجی، اور شدید بارش تھی، ظلمت اور اندھیرے کی انتہا تھی، دن میں بھی اندھیرا، کوئی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا، پانی ان کے گھروں میں داخل تھا، پانی ان کے ہنسلیوں تک، یہاں تک کہ بنو اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ان کے گھر تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا، جبکہ برابر میں ان کے گھروں میں پانی ٹھاٹے مارتا تھا۔ ان کی زمینوں پر بھی پانی بہنے لگا جہاں وہ کاشتکاری کرتے تھے۔ اب جب پانی کھڑا ہو جائے، جو لوگ دریا کے قریب جن کی زمینیں ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ جب دریا کا بہاؤ چڑھتا ہے نا تو پانی کھیتوں میں آ جاتا ہے، اور پھر دریا جب بہتا ہے تو پانی کھیتوں میں رک جاتا ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ جب تک وہ زمین کا پانی خشک نہیں ہوگا، زمین خشک نہیں ہوگی، ہل نہیں چلے گا تو اس میں جب وہ کھیتی نہیں اگائی جا سکتی۔ تو اب ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوا، تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اور عرض کیا کی، یہ جملہ آپ سماعت فرمائیے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی ہے۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے
हमारे लिए दुआ मांगी। या हमें जब असातिज़ा पढ़ाते थे वो ये कहते थे कि ये कौम देखें, ये नहीं कहती थी कि आप हमारे रब से, कहते थे अपने रब से, जो थोड़ा अपना रब है वो को बुलाओ, वो सब दुआ मांगो, वो तुम्हारा रब है, यानी कि अपने रब से आप हमारे लिए दुआ मांगे। यानी कि इन्होंने अल्लाह को अपना रब तस्लीम ही नहीं किया, ऐसी कौम जो थी। तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते आए, वादा करा कि हम अल्लाह की इबादत में मगन हो जाएंगे, हम ईमान ले आएंगे, बस एक दफ़ा हमारी जान जो छूट जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर करम किया और खेतियाँ बागात पहले से ज़्यादा अनाज देने लगे, फल देने लगे। कहने लगे ओहो हो, और तुमको समझ नहीं आई, ये बारिश तो रहमत बन गई भाई, इससे तो देखो फल और बढ़ गए। इसमें तो देखो जहाँ पर गंदम 1 एकड़ की 40 मन निकलती थी, इससे तो 60 मन निकल रही, ये और भी बढ़ गया। कहने लगे ईमान क्या लाना है, ये तो हमारे लिए भाई से रहमत थी, अल्लाह अकबर। तो ये ईमान जो है वो नहीं लाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर जो दूसरा अजाब भेजा वो ये थी टिड्डियाँ। अब इनको अपनी खेतियों पे फ़ख्र था, अपने बागों पे फ़ख्र था, तो अल्लाह ने टिड्डियाँ भेजी। टिड्डी दल होता है, टिड्डी दल, यानी कि इसको लोग टिड्डी दिल भी पढ़ते हैं, जिनकी उर्दू कमज़ोर होती है टिड्डी दिल पढ़ते हैं, दिल नहीं होता दल होता है। तो ये टिड्डी दल जो है वो जिस तरफ जाते हैं ना खा जाते हैं हर चीज़। ये तो आजमाइश थी ना। इन टिड्डियों ने क्या किया, पहले इनकी खेतियों को खाया, फिर इनके बागों को खाया, दरख्तों को खाया, यहाँ तक कि इनके जो लकड़ी के दरवाजे थे ना, लकड़ी के दरवाज़ों को भी खा लिया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको जुमला पढ़ के सुनाऊँ। तो उन्होंने जो है वो हर चीज़ को उन्होंने जो है वो खा लिया, खेतियाँ, फल, और उनकी जो छतें थी ना लकड़ी की वो भी खा गई, कपड़े भी, दीगर सामान भी खा गए। यहाँ तक लोहे की कीलों के बारे में ये देखिए जुमला लिखा हुआ है कि लोहे की कीलें भी जो है वो खा गई। और जब ये हाल हुआ तो उनके दरवाजे भी जो है ना खा गई, हर चीज़ खा गई। अब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, फिर वही जुमला दोहराया, कालू या मूसा उदउ लना रब्बका, मूसा अलैहिस्सलाम आप अपने रब से बोलिए। जैसे आदमी कह रहे हैं यार आप अपने उनसे बोलिए ना, अल्लाह अकबर। तो साहिब तफसीर फरमाते हैं कि ऐसी कौम थी, ये मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं आप अपने रब से बात कीजिए, यानी कि अपना रब तस्लीम ही नहीं करते। मादा खैर अल्लाह की रहमत ऐसी हुई कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनके लिए दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो इनसे उस अज़ाब को दूर किया। एक रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा से यूँ करके इशारा किया तो वो टिड्डियाँ जिधर को इशारा किया था जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। और एक रिवायत में है कि तेज़ हवा चली और तेज़ हवा उन टिड्डियों को उड़ा करके ले गई। फिर कुछ अरसा गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई वो वादा पूरा करो, ईमान लाओ। कहने लगे अब तो टिड्डियाँ भी चली गई, अब तो सब नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर जुएँ मुसल्लत की, ये जो जुएँ पड़े जाते हैं जुएँ मुसल्लत की, और जो कुछ टिड्डियों से बचा हुआ था ना वो जुएँ खा गई। जुएँ इनके कपड़ों में घुस जाती, काटती रहती, हर वक्त खुजाते रहते, बुरा हाल, हशर, बिस्तरों में घुस गई, ओहो बुरा हशर कर दिया। हज़रत इब्ने सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, आप फरमाते हैं कि फ़िरौनी जो थे, ये जो है ना वो एक घुन होता है, घुन होता है जो जिसको हम सुसरी बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं, जो गंदम में जो कीड़ा लग जाता है ना। अब वो अगर कोई शख्स 10 किलो गंदम पिसवाने के लिए चक्की पे लेके गया है ना, तो वो घर से लेके निकला, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये 7 किलो खा जाती थी। 3 किलो का आटा जो है ना वो लेके घर आता था और ये बड़ी मुश्किल होती थी। इनके बाल गिर गए गंजे, इनकी आंखों की पलकें और अबरुओं के बाल तक झड़ गए, और इनके जिस्मों पे जुएं चीचक की माने चिमटी हुई थी। तो बेकरार रहते थे, सो भी नहीं सकते थे। फिर ये बारगाह कलीमी में हाजिर हुए, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। फिर वही जुमला, अब तो ये जुमला आपको याद है ना, कालू या मूसा उदउ लना रब्बका, मूसा अलैहिस्सलाम आप अपने रब से कहिए ना इस अजाब से जान छुड़ा दे। एकदम हम पक्की बात कर रहे हैं, अगर ये अजाब हमसे दूर हुआ तो हम जो है वो पक्का ईमान ले आए।
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहि सलाम की दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो इनसे उस अजाब को उठा लिया। अब इन बदबख्तों ने ये कहा कि ये बात जो है ना पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि आप जादूगर हैं, माशाअल्लाह। कहा अब हमें यकीन हो गया है, आप दुआ मांगते हैं तो हमारी मुश्किल खत्म हो जाती है, और जब हम आपकी बात नहीं मांगते तो कोई ना कोई मुश्किल मुसीबत हम पे आ जाती है। आप माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आप जो है वो जादूगर हैं। अल्लाह अकबर। जब इन्होंने इस तरह का वो किया तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर तफादे मेंढक का अजाब भेजा। छोटे छोटे मेंढक जो है ये गांव देहात के लोग ज़्यादा जानते हैं, गर्मियों में बारिश हो जाए तो ये छोटे छोटे मेंढक जो है ना वो बहुत निकलते हैं गर्मियों में खास तौर पे। अब अगर नीचे बैठे हैं तो ये पाँव के नीचे घुस जाएंगे, इधर उधर सब बड़ी मुश्किल होती है, मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये इनके साथ बड़ा उन मेंढकों ने बड़ा अंजाम किया। रावी फरमाते हैं कि ये खाना खाने बैठते खुदक के इनके खाने रोटी सालन तक पहुंच जाते हैं। सोचिए मेंढक, चाइना वाले होते तो वो तो फ्राई करके खाते थे। तो ये मेंढकों ने इनका जीना हराम किया। ये बात भी करते थे तो इनके इधर कंधों पे, किसी के कंधे पे चढ़े हुए हैं, किसी के किधर। यहाँ तक रावी फरमाते हैं कि अगर ये सोए हुए हैं ना तो इसके दूसरी तरफ मेंढक जो है ना अपनी वो मचान बना लेते थे। अब ये साइड भी नहीं पलट सकते थे। है मालूम चला कि आप कमीज पहन के सोए, थोड़ी देर के बाद अंदर खुसर खुसर हो रही है और आपने देखा तो ये यूं टांग से पकड़ के आपने निकाला तो छोटा सा मेंढक निकला है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ये वाला साइज। तो बहुत बड़ा ये अज़ाब था, बहुत बड़ी आजमाइश थी। जब आदमी खाने का इरादा करते तो मेंढक पहले से उनके मुंह के पास आ जाते, आटा गूंथते तो मेंढकों से बढ़ जाता। ये गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए फिर पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में और जुमला वही कहा उन्होंने, वादे किए, बड़े अहद किए, आपने दुआ की तो अल्लाह गफूर रहीम है, खालिक मालिक ने उनसे अजाब को दूर कर लिया। जब दूर कर दिया तो कुछ अरसे के बाद इन्होंने सारे वादे जो है ना भुला दिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अजाब का जिक्र है वह दमा, अल्लाह ने इन पर खून मुसल्लत कर दिया। खून मुसल्लत कर दिया क्या कि ये पानी जो था ना इनका खून बन जाता था। ये पीने की कोशिश करते तो खून बन जाता, यहां तक कि दरियाई नील जो था वो ताज़ा खून बन के बहने लगा। ये सारी बातें तफसीर रूल मानी की जिल्द नंबर 9-10 के सफ़ा 34 पे है, यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इनके पानी लहू बन गए। अच्छा, एक ही जगह से बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग पानी भरते, ये भी वहीं से पानी भरते, तो उनका पानी पानी रहता है, इनका पानी जो है वो खून बन जाता, स्मेल वाला है, वो अजीब हो जाता। तो यहाँ तक ये लिखा गया है कि वो जो है एक ही जगह से, एक ही मटके से जब पानी लेते तो वहाँ से वो पानी लेते, वो उनके सामने अपना गिलास में डाला या हाथ में या प्याले में या जिस तरह लकड़ी के प्याले होते थे उस दौर में, तो पानी पीते थे। ये अगर वही पानी जो है वो पीने लगते थे तो खून बन जाता था। यहाँ तक लिखा हुआ है कि इनकी औरतें बनी इसराइल की औरतों से कहती कि खुदा के लिए आप अपने मुंह में पानी डाल के हमारे मुंह में कुल्ली कर दो। तो जब वो इनके मुंह में कुल्ली करती थी, डिस्टेंस देखें कितना है, वो पानी निकलता पानी था, इधर पहुंचता था, फिर खून बन जाता। पूरा कुरान ने जो है वो बयानिया फरमाया है और पूरी वजाहत जो है वो दी है कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो है वो, कि इन पर इस तरह के अजाब आए और फिर इन पर चिचक, वो जो ताउन का अजाब है वो भी आया इन पर, और 70,000 लोग जो है वो मारे गए। दफन करते करते ये थक जाते थे, इधर दफन करके आते थे, इधर आगे और लाशें तैयार होती थी, बुरा हाल हशर। तो फिर जब ये बहुत सरकशी में आगे निकल गए, बहुत आगे चले गए, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो इस कौम को यूं तबाही और नेस्त नबूदी की तरफ डाला। जब अल्लाह ने इनको अजाब निजात अता फरमा दी बनी इसराइल को, अब फिरौन तो गर्क हो गया, ये पूरी कौम हलाक हो गया। अब इनके मजे थे, इनके महल थे, उनका सोना चांदी सारी प्रॉपर्टी इनके पास आ गई। अब इनके मजे थे, अब इनको जिहाद का हुक्म हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो 12 सरदारों को भेजा कि फलां कौम से जिहाद करना है, ज़रा पहुँचो।
अब आप देखिए कि जब ये वहाँ पहुँचे जंगल में तो इनके कद हालांकि 60 हाथ होते थे, 60 गज के करीब कद होते थे, लेकिन आगे वाली जो कौम थी वो और भी थी। रावी फरमाते हैं कि इनके जो लोग थे ना उनको पकड़ के ना बंदे ने, अब ये जो हम शलवार बांधते नाड़ा, उन्हें नाड़े में ऐसे जैसे आदमी कोई चीज़ नहीं फंसाता, उन्हें नाड़े में ऐसे फंसा के नाड़ा कस दिया था। इतने उनके बड़े बड़े कद थे, यूं उठाया और इधर ये गाड़ दिया था। गांव देहात के लोगों को ज़्यादा मालूम है, वो गाजर मूली इधर टांग लेते हैं ना है। तो खैर यहाँ से आगे फिर चलेंगे। मेरे सामने वाली घड़ी तकरीबन 3 मिनट जो है वो पीछे है। आइए यहाँ से कल इंशाल्लाह फिर इब्तिदा करेंगे।